थोड़ा थोड़ा वेलकम कर दिए हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी। सबको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप you all had a good week even though our week was heavy, hectic, busy, but we thank God for the Sabbath and the Sabbath day blessings. Mausa Mausi, good evening, happy Sabbath आप लोगों को। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप साड़ी में। टाइम मिला तो साड़ी पहन ली। अच्छा, गुड इवनिंग एबी। ठीक है, so we would like to begin. Hi Abby and Sono, good evening, welcome, happy Sabbath. Happy Sabbath to both of you. ठीक है, so let us start. We'll have a short prayer as we begin our worship and then we'll move on to our song service. Polly, good evening, and your family, Arpita, Hema, Cherry. I hope you all are doing well. Okay, so let's have a prayer as we begin. A kind and merciful Heavenly Father, we are very much thankful for taking care of us throughout the week. You have blessed us in our work, in our studies, and whatever activities we did. We thank Thee and praise Thy name for your goodness, for your mercies, for your protection over each and every one of us, and for bringing us together, each family, for our worship this evening. Dear Father, we want to ask Thy blessings to go with us as we begin our worship and be with those who are joining us and be with each and every members of a family, bless them individually and collectively. And we also want to remember those who are still sick. We continue to pray for Daddy that you have been blessing him and continue to heal him and continue to be with him, dear Father. Be with all those who are taking care of him, especially Nathan and Polly and his family, dear Father. We thank Thee and for all the prayers, dear Father. Bless us as we have our evening worship and prepare our hearts and minds for worship, dear Father. This mercies we ask in dear Jesus Christ's name. Amen. ठीक है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि वो हमारे साथ था पूरा हफ्ता भर, अच्छा से रखा, तंदुरुस्ती दिया, हर प्रकार के दुख तकलीफ से बचा के रखा और हमें सबत का दिन शाम को देखने का मौका दे रहा है और हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज का प्रार्थना शुरू करने के लिए साम 145 से पढ़ने चाहते हैं। जिनके पास हिंदी बाइबल है मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगी और जिनके पास हिंदी बाइबल है आई रिक्वेस्ट somebody to read in Hindi. Psalm 145, it's a psalm of praise, song of God's majesty and love. I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. They shall utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. May the Lord add blessings to it. And I want somebody to read in Hindi, Psalm 145 from 1 to verse 9. हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यह महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा।
लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। पढ़ ली, 9 तक हो गया, वर्स 9। 8 पढ़ना है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बीच में विशेष खास मेहमान है जो हमारे लिए हिंदी में वचन पढ़े हैं, तो हम उनको वेलकम करने चाहते हैं। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में नौमी, प्रीति और उनके परिवार हैं जो इस समय सॉन्ग सर्विस में लीड आउट करेंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट नौमी, प्रीति, कुकू and the rest of the family to join or lead us in the song service. Okay, over to Nomi. Thank you. Good evening and happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath! And today we're going to have a children's special song service. And Kuku, come front. Kuku and Golu. Yes, so the first song is Deep and Wide. Deep and wide, deep and wide, like a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, deep and wide, like a fountain flowing deep and wide. Wide and deep, wide and deep, like a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, wide and deep, like a fountain flowing wide and deep. The next song is He's Got the Whole World. He's got the whole world in his hands. 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 He's got the sun and the rain in his hands. He's got the sun and the rain. In his hands, he's got the sun and the rain. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the brother and my sister. In his hands, he's got the brother and my sisters. In his hands, he's got the brother and my sister. In his hands, he's got the whole world in his hands. Okay, so the next song is Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing, Hosanna.
in my heart, keep me loving. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me loving. Keep me loving till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Okay, so the next song would be This Little Light of Mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Don't let Satan blow it off. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it off. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Okay, so our last song would be I've got joy like, I've got peace like a river. I'm sorry. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Thank you, everyone. Thank you, Nomi, Kuku, Gulu for that wonderful song service. And I saw Clayton also singing and dancing along. Okay, what a joy to see little children singing and participating in the worship service. So thank you very much. And as we had begun, I saw there are others who have joined us. So we want to welcome. Uncle Manohar, Ekka, and Miss Shama Madam. So welcome to our worship this evening. We are so glad you have joined us from New Delhi. And happy Sabbath to you. And we want to also welcome Rani and Ashish, Mami, and all of you in our family. And also see Irene and Gladwin and the child in the worship. So, we have Joel. Welcome, Joel, and Pupa and Pupu. Welcome. And we see Preeti Lata, and we are seeing Ria also. Welcome, Ria. So thank you so much for joining us in the worship. So आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस समय हम सोनू और एबी को नहीं, उससे पहले we have a opening prayer
And we want to invite, yes, we want to welcome Mr. Ashok Shagore, who's joining us from Biara. So, sir, please lead us in our opening prayer. Okay, let's pray. Father Divine, once again we thank thee for this beautiful opportunity for another Sabbath we could spend together. We thank you, Lord, for the unity of the family and the extended family. We could come together and thank you for your blessings. You have taken well care of us. You have protected us and saved us from all harm and danger. Father Divine, we surrender ourselves unto thy care and keeping. Bless, guide us. Give us wisdom and knowledge. As we participate in the service, Lord, help us that whatever the messenger has brought today for each and every one of us. Bless each and every child. Bless elderly people, especially those who are facing health challenges. Lord, be with them. Once again, Lord, I surrender myself and the entire family unto thy care and keeping. Help us and guide us that we remain honest and faithful to thee. For we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, Mr. Sagore, and appreciated your leading us in the prayer. At this time, we want to welcome and invite Sonu and Abby to lead us in the quiz. Okay, over to you, Sonu. Okay, thank you, Dolly Pupu. Today the quiz will be on Genesis chapter 46 to 48. I hope all of us have prepared. It's a very simple quiz. If we have read it even once, we'll be able to answer. So for few questions, I have given just 10 seconds, and for some questions 20 seconds. So I hope all of us have prepared and we'll be able to get all answers right. It's on Kahoot today. So I would like all of you to open your Kahoot apps on your phone. This is the game pin 214344. 214344. Okay. 14 players have joined. We'll wait for 2 more minutes and we'll start. Has everyone joined? Wait for 1 more minute. All right, I think we are ready to start. Okay. All right, I'll start. Okay, the first question is, all people of the house of Jacob came to Egypt under Joseph's request. True or false? Quickly. All right, true. Most of you got it right. Well done. Okay. We have Bagrai leading. All the souls of the house of Jacob which came into Egypt were how many totally? Okay, everyone has answered. 70 is the right answer. In King James Version, it's
30 score and 10. So that's, so 3 score and 10. So that's 70. Most of you got this one right as well. We have D and B leading now. The next question, what did Jacob say after he saw that Joseph was alive and well? At last I can settle in this land. At last I can die. Now that I've seen for myself that you are still alive. At last my sons are all together again. At last I can reveal the word of God. Okay, most of you have got this one right as well. He said, at last I can die now that I have seen for myself that you are still alive. We have DNB leading. How many brothers did Joseph bring with him to meet the Pharaoh? Quickly, this is only 10 seconds. Okay, everyone has answered. This also, most of you have gotten it right. 5. He took 5 brothers with him to meet the Pharaoh. We still have DNB in the lead. Joseph told his brothers that they must tell the Pharaoh that their occupation is blacksmith workers, to be sons of God, owners of livestock, or carpenters. Okay, most of you have got this one right as well, as owners of livestock. ENB still in the lead, good job. 6th question, how old was Jacob when he meets the Pharaoh? 123 years old, 130 years old, 115 years old, and 98 years old. (130). 15 of you have gotten it right. He was 130 years old when he met the Pharaoh. DNB still in the lead. Congratulations. Who was the father of Ashbel? Manasseh, Jezer, Joseph, or Benjamin? Okay, it's Benjamin. He was the father of, son of Benjamin. Ashbel was Benjamin's son. Okay, Indore is leading now. Who was the father of Ephraim and Manasseh? Okay, most of you got this one right. Joseph, good job. We have Indore leading now. Where did Jacob tell Joseph that God appeared to him in Canaan? Gibeon, Luz, Ai, and or Gilgal? Okay, everyone's answering quickly. All of you have read. That means yes, it's Luz. Luz. Not sure. Indore is leading. Where was Jacob's wife Rachel buried? Egypt, Canaan, Babylon, or Assyria? Egypt is the right answer. We have Gur leading now. What was another name for the city Ephrath? Was it Bethel, Beersheba, Bethlehem, or Babylon? It's Bethlehem. We have Indore back again. This is the last question. After blessing Joseph and his 2 sons, Israel gave a ridge of land he had taken from whom? The Hittites,
answer. Well done, all of you. Almost all questions, most of you got it right. So keep preparing for the next quizzes as well. We'll see the results. We have Delano in the third place, second place Roorkee, and first place goes to Indore. Congratulations. And congratulations. Thank you all for joining. Thank you, Sonu. Well done. And this is the most interesting part of our worship. Everybody looks forward to it. Whether you are young or younger or old or older, everybody loves to be part of the quiz. So thank you very much. So moving on, we are going to have a special item of music, a special song by Kenny, Teddy, and Shania. They're joining us from Ghatshila. Kenny, Teddy, and Shania, we welcome you to present your special song. Okay. Can you do that side? The guitar. Good evening, everybody, and happy Sabbath. The song which we'll sing is Your Love Defends Me. You are my joy, you are my song, you are the well, the one I'm drawing for. You are my refuge, my whole life long. Where else would I go? Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. We all alone. Your love defends me. Your love defends me. Day after day, night after night, I will remember you're with me in this fight. Although the battle, it rages on, the war's already won. I know the war's already won. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. I think the video got stuck. We'll just give them a few minutes.
Okay, I would like to thank Kenny and Teddy for blessing us with that wonderful song. Unfortunately, we have lost them. Maybe they're having internet problem. So meanwhile, we saw there were some other folks who were joining us. So we want to welcome Pradeep Tete, Sushma, Pammy, and Sammy joining us from Galodi, I guess, if you're still there. Okay, so welcome, Pradeep. And I'm seeing Robi Mamu and family. Welcome, Robi Mamu. आप लोगों को हम हैप्पी सैबथ और वेलकम कर रहे हैं हमारा आज का शाम का वेस्पर सर्विस वर्शिप के लिए. And I'm seeing Rinku Rani joining us from Mumbai. Rinku, happy Sabbath, welcome. Happy Sabbath. And Pradeep, Pammy, Sammy, welcome, happy Sabbath. Nice to see you. Okay. ठीक है, तो we are waiting for the Hembrom family to come back, George and family, because we have the message by Mrs. Megha Hembrom. So we have to get them back so we can listen to the message. So we are glad that folks have joined us from different parts of the country. And we are very happy to have you worshiping with us Sabbath after Sabbath and joining us virtually online. And we are thankful for that. Okay. So we'll give it a few more moments. Anybody want to share anything? How was your week? Want to give thanks? A short testimony to say how God has been leading you in your lives? Since we have Manohar uncle for the first time, हाँ आप कुछ बोलिए. हाँ अंकल आप अनम्यूट करिए माइक को और हमारे साथ शेयर करिए. माइक को अनम्यूट करिए. I think he's not getting to with us. Okay, since we are waiting for them to unmute, let's go to Robi Mamu. आप कुछ शेयर करने चाहते हैं मामू? आपका वीक कैसे रहा? ईश्वर आप लोगों को कैसे आशीष दे रहे हैं? उसके बारे में कुछ शेयर करें. हाँ आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए. हाँ रोबी मामू बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है. ओके, लुक्स लाइक आज सबका कुछ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो रहे हैं. तो ओके, where shall we go now? Let's go to Pradeep and family. आप कुछ शेयर करने चाहेंगे हमारे साथ? How God has been blessing you and your family and Pammy and Sammy. Unmute करो माइक को. We are back. Sorry for the inconvenience. Okay, just give us a few minutes. We were just inviting Pradeep to share with us how his week was. So just 2 minutes and then we'll over to you all. Yes, Pradeep.
हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका भी। Can others hear him? Because I'm not hearing anything. Okay, Pradeep, we'll have to move on. Sorry. ठीक है, कुछ बोलने चाह रहे थे पर फिलहाल उनका माइक में कुछ खराबी है तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, सो वी आर वेरी हैप्पी कि आज का जो हमारा मैसेज है हमारे लिए जो ला रहे हैं उसके बारे में आई वांट टू शेयर few words of introduction for the person who is going to share the message. The Lord has impressed upon her to share the message with us this evening. But before she comes, I want to introduce Mrs. Megha Hemrom. She was formerly known as Megha Matthews, daughter of Mr. Douglas and Mrs. Lavlina Matthews. She was born in Jodhpur. She is the second of 4 kids in her family, and she had completed her schooling, intermediate, graduation, and PG all in Jodhpur. And we are so glad to know that she has a master's in geography honors. And currently she works as an administrator in Irvine Adventist School in Ghatshila, where they're located. And she hails from Jodhpur, Rajasthan. And of course, I must give credit to Janelle for sharing this information with me. So she is very talented. I know her to be very talented in art and a lot of things she does around the house, and loves cooking. She's masters in Rajasthani dishes. She's very good with the tailoring. She uses fine homemade mask. These days in COVID days, she prepared some handmade mask. I must see some of them. She loves singing and shopping online. And she's very good mother and loving wife. I know she's full of kindness, love. Anytime you need her help, she's willing to help. And even though children here are very fond of her, even though she comes from a non-Christian background, she is a firm believer in Christian philosophy, and she practices what she believes in, and she has totally submitted her to the Lord's service. So we are so glad to have Sister Megha Hemrom, and she is married to George Ranjit Hemrom, and together they have 2 beautiful daughters, Shania and Susanna. So with these words of short introduction, we want to welcome Megha, also lovingly known as Bubbly, to bless our heart with her message. Okay, Bubbly, over to you. Thank you, Dolly Didi. आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? थैंक यू डॉली दीदी। मैं आप सभी को गुड इवनिंग बोलना चाहती हूँ। सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है जब मैं आप लोगों के सामने जो वचन मैंने तैयार किया है परमेश्वर की उपासना के लिए, या कहें उनको किसी न किसी प्रकार से अगर मेरे द्वारा महिमा मिल सके, उस प्रकार से मैंने अपना वचन को तैयार किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ। मैं बचपन से ही इन चीज़ों से घबराती हूँ बोलने के लिए और सामने आने के लिए, लेकिन जब ईश्वर का वचन के लिए बात आती है तो हम लोगों को खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रोज़ यही सब चीज़ें सीखते हैं। आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, और ये टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, जिसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। जब मैं इसको तैयार कर रही थी तब मैं सोच रही थी मैं इस सब्जेक्ट को, इस विषय को, इस टॉपिक को बताने के लिए सही व्यक्ति हूँ कि नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा मैं भी अगर
मेरी तरफ से ये वचन किसी तरह से बांटा जाए तो इससे मैं भी सीखूं और दूसरे भी सीख पाए, क्योंकि सब लोग मेरे जीवन को देखते हैं और वो लोग जानते हैं कि मैं किस प्रकार से रहती हूँ, किस प्रकार से मेरा बोलना चलना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ वो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पर, आध्यात्मिक अनुशासन। ये एक है बहुत गंभीर टॉपिक है जिसे हम लोग एक मसीह होने के नाते ज्यादातर हम लोग जानते हैं डिसिप्लिन क्या है, जो हमारे माता पिता हम लोगों को बचपन से सिखाते हैं और हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में एक मसीह जीवन में हमें बढ़ना है। तो आगे हम देखेंगे डिसिप्लिन क्या है। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि अनुशासन क्या है। अनुशासन एक प्रैक्टिस है जो कि हम लोग अपना माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने एक्शंस में लेके आते हैं, उनको अपने कामों में लेके आते हैं, और जिससे कि हम जो नियम और कानून हैं उनको हम लोग फॉलो कर पाते हैं, उनके ऊपर चल पाते हैं। तो अनुशासन हम लोग के जीवन में एक ठहराव लाता है और हमें मदद करता है कि हम अपना गोल या अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। दैनिक जीवन में जितने भी अनुशासन है वो नॉर्मली एक इंसान फॉलो करता है। सुबह उठना, ब्रश करना, उसके बाद वॉशअप, नहाना धोना, खाना टाइम से 3 टाइम का खाना, और उसके अलावा अपने काम को लेके एक व्यक्ति अपना नॉर्मल डिसिप्लिन बनाता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जो कि एक इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पे डिसिप्लिन होते हैं तब हम लोगों की लाइफ बहुत ही बेटर होती है बनिस्बत जब हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं। मैं अपने जीवन में देखती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, मैं चारों तरफ मैं देखती हूँ, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ तो मुझे पूरा दिन उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, क्योंकि मेरे काम सब लेट होते हैं। जिसके काम सुबह जल्दी होते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन मेरे काम लेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिन भर के कामों की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करते हैं ईश्वर के प्रति हम लोग का आत्मिकता किस प्रकार से हमें डिसिप्लिन करता है। जब हम लोग ईश्वर को अपने आराधना में, अपनी प्रार्थना में, अपने समय में देते हैं, तब हम लोग इस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से जुड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश किया है, जो हिंदी पढ़ सकते हैं उनके लिए दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं, एक विश्वासी मसीह में आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए होता है। जब हम खुद को अनुशासित करते हैं तो न केवल हमारा चरित्र बनता है, हम अधिक फल देते हैं, हमारे तरफ से अधिक हमारे जीवन से अधिक फल दिखाई देते हैं, और हम लोग अपना और ईश्वर से एक रिश्ता कायम करते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन आपको ईश्वर के दिल और दिमाग में जाने की अनुमति देता है। गहरा गोता लगा हम डीप जा सकते हैं ईश्वर जब हम आध्यात्मिक तौर से अनुशासित होते हैं, क्योंकि हम उनके वचन के लिए तैयार होते हैं। जब हम तैयार होते हैं तो हमारी इच्छाएं बदलने लगती है, हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं और उनकी तरफ आगे आगे बढ़ने लगते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरा दिल से, मन से और आत्मा से होता है, और हम लोग पूरा अपना एकजुट सब कुछ लगा देते हैं और ईश्वर की तलाश शुरू करते हैं। जब हम बाइबल के वचन से जानते हैं सीकी फर्स्ट किंगडम ऑफ लॉर्ड, तो वो सब चीज हम लोग अगर अनुशासित होते हैं तभी हम लोग अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं। हम लोग बाइबल से देख सकते हैं, आप यहाँ कुछ वर्सेस देख रहे हैं, 1 तिमोथी 4:8 में आप देख सकते हैं। कोई मेरे लिए हिंदी में अगर पढ़ देगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो इट्स ओके।
1 Timothy chapter 4 verse 8। मैं हिंदी में आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम अपना बॉडी की साधना करते हैं, हम अपने बॉडी को बनाने के लिए अपना शरीर के लिए काम करते हैं, तो वो कितने दिन तक हम लोगों को प्रॉफिट दे सकता है, कितने दिन तक के लिए हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन जब हम ईश्वरीय आध्यात्मिक बातों पे विचार करते हैं और उसके अनुशासन में जीते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होता है, और उसी से हमारे जीवन की सारी प्रतिज्ञा जुड़ी हैं। अगला वर्स जो है 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 24 to 27, अगर कोई मेरे लिए पढ़ देगा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए किए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जी, थैंक यू सनी। यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि बाइबल में किस प्रकार से अनुशासन को दिखाया गया है। यहाँ पर शुरू में शारीरिक अनुशासन की बात की गई है, जिसको लेके हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम लोगों की नज़र में या हमें कोई प्राइज या किसी भी चीज का अगर हमें मोह होता है तो हम उसकी तरफ जाते हैं और अपना एक शारीरिक अनुशासन को पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बोल रहा है कि अगर आप अपना बॉडी को और माइंड को आप अगर तैयार करते हैं उस रीति से, आप केवल हवा में मुक्के मारने के अलावा नहीं के बजाय नहीं है, ये आप अपने आप को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि आपको देख के दूसरे इन्फ्लुएंस पाते हैं और उनका जीवन बदलता है। ये एक नश्वर प्राइस के लिए नहीं है, ये हम लोग ईश्वरीय राज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और हम लोग जब इन बातों पे विचार करते हैं, इनको समझते हैं और सिखाते हैं, तब दूसरे कोई हम लोगों को देख के जानते हैं और वो समझ पाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में अनुशासित हैं। एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन से अनुशासन दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। रोमन्स 12:1 से 2 पढ़ दीजिए प्लीज। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और यही हमारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभाव से मालूम करते रहो। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब हम ईश्वर में बने रहते हैं, ईश्वर के अनुशासन में बनते हैं, तो हमारे जीवन में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हमारा जीवन एक नया हो जाता है, जिसको कि लोग देख के पूछते हैं कि आप में क्या किस प्रकार से बदलाव आया है। तो ये अनुशासन बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। यहाँ पर कुछ अनुशासन के पॉइंट है, जिसको जब मैं तैयार कर रही थी वचन, तब मेरे को कुछ पॉइंट्स मिले थे और मैंने उन्हें देखा और मैंने उससे समझने की कोशिश की। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको नहीं मे बी पूरा नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। 3 तरह से हम लोग अनुशासन को बांट सकते हैं। एक है आंतरिक अनुशासन, इनवर्ड डिसिप्लिन, दूसरा है बाहरी अनुशासन, आउटवर्ड डिसिप्लिन, एंड तीसरा है संगति अनुशासन, कॉर्पोरेट डिसिप्लिन।
तो जब ये आंतरिक अनुशासन है, ये हमें अपने अंदर करने के लिए, ये एक पर्सनल अनुशासन है। पर्सनल तौर पे हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन को अनुशासित करते हैं उसके विषय में है। इसमें हमारे सामने है, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्लस फास्टिंग है और अध्ययन है। ये 4 पॉइंट है। जबकि बाहरी डिसिप्लिन में हमारे पास में सिंप्लिसिटी है, सॉलिट्यूड है, सबमिशन और सर्विस है, सादगी, मौन, समर्पित करना और सेवा। ये 4 पॉइंट हैं। और लास्ट में आपके पास कॉर्पोरेट डिसिप्लिन है, उसमें आपकी संगति अनुशासन को बोलते हैं हिंदी में। पश्चाताप है, आराधना है, पथ प्रदर्शन है और उत्सव सेलिब्रेट करना है। तो मैं आपको काफी शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। जब हम पहला टॉपिक लेते हैं, मेरा जो पॉइंट्स है वो व्यवस्थित नहीं बनाया है मैंने, जितना हो सका उतना मैंने व्यवस्थित करने की कोशिश की है। अगर आप समझ पाए तो आप समझेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहती हूँ। यहाँ पर पहला जो मेरा पॉइंट है वो है स्टडी। हम लोग अनुशासित होने के लिए हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, हम लोगों को क्या करना है अनुशासित होने के लिए, जिससे कि हमारा जीवन एक लाइन पर आ सके। उसके लिए हमें एक मसीही अनुशासन में जाने के लिए हमें स्टडी करना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अध्ययन करने से हम लोग समझने की शक्ति हमारी बढ़ती है। हम चीजों को व्यापक तौर पे देख सकते हैं, बड़े बृहद तौर पे देख सकते हैं और उनके प्रति हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग देखते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 to 17 आप देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर जैसे लिखा है, योर टीचिंग आर डीप विद इन मी, साम्स 40 वर्स 8 में लिखा है। जो ईश्वर की टीचिंग्स है वो क्या है, हम लोग के अंदर है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पहले से सब कुछ समझा बुझा, मतलब हम लोग सीखते आए, लेकिन ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया कि उनकी टीचिंग हमारे अंदर है। उनकी जो 10 आज्ञाएं हैं जो हम जानते हैं बचपन से, बहुत सी चीजें जानते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज मैं क्रिश्चियन परिवार, मेरे पापा क्रिश्चियन है लेकिन मेरी मम्मी क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन हम 10 आज्ञाओं के अलावा मतलब हम लोग उनको सीखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि किस प्रकार से 10 आज्ञाएं हमारे जीवन में हमारे माता पिता या हम लोग जब प्रार्थना करते थे उसमें काम करती थी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जब हम उपदेश पढ़ते हैं, जैसा यहाँ 2 तिमोथी 3:16-17 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधरने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा पवित्र शास्त्र जो हमारे सामने है, ये बाइबल हमारे सामने है, ये पूरा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसको किसी लेखक ने नहीं लिखा, ये पूरा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसका जो भी एक शब्द है परमेश्वर का शब्द दिया गया वो सत्य है, उसे कहीं से तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता। जब हम इन वचन को समझ लेते हैं और जान लेते हैं, तब हमारा जीवन कैसा हो जाता है, एक सिद्ध जीवन बन जाता है और हम लोग भले काम के लिए अपने आप तत्पर हो जाते हैं, अपने आप को तैयार कर पाते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग स्टडी करके, नॉलेज बढ़ा के अपना हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जब स्टडी करते हैं ईश्वर के वर्ड को, तो हम लोग जान पाते हैं कि किस लिए ईश्वर हमारे बीच में है, हमें क्यों बनाया गया है, या उसका प्रयोजन क्या है, और ईश्वर से हमारा और दूसरों का रिश्ता किस प्रकार से है। हम जब डीप जाते हैं ईश्वर के अध्ययन के लिए, तो हमें
बहुत सी चीजों, ऐसा बोला जाए तो ठीक होगा कि बहुत से राज हम पे खुलते हैं और बहुत सी ऐसी बातें जिसके विषय में हम नहीं सोच पाते अपने आम जीवन में हमारे बीच में प्रकाशित होती है। तो ईश्वर के वचन को जानने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो ईश्वर के वर्ड के साथ, ईश्वर के वचन के साथ हमें समय बिताना होगा। आप सुबह शाम वर्शिप करते हैं, उसके अलावा आपको प्रार्थना में बैठना होगा, वचन को अपने अंदर बिठाना होगा। प्रार्थना, अध्ययन, प्रार्थना, इसका मतलब है कि जब आप वचन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, बहुत से लोग सालों से वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग नहीं समझे हैं, हम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो प्रार्थना करके अध्ययन शुरू करते हैं तब उनको बहुत सी चीजें समझ आती है। और यहीं पे हमें नहीं रुकना है कि प्रार्थना कर लिया और अध्ययन खत्म हो गया और बस, लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, अध्ययन करना है, और फिर हमें उसमें प्रार्थना में फिर जाना है, क्योंकि वो अध्ययन को जरूरी है कि हमारे जीवन में वो काम कर सके, उसके प्रति हम आगे बढ़ सके। आप जब प्रार्थना करते हैं उसके बाद में, अध्ययन करने के बाद में आपको ठहराव की और ईश्वर को, उस वचन को समझने की जरूरत है। आप रुके वहां पर, ऐसा नहीं कि आप चलते जाएं, लगातार पढ़ते रहें, एक अध्याय खत्म करना है, जैसे भी खत्म किया जाए वैसे नहीं। आपको ठहराव की जरूरत है, अपने जीवन में भी अपने ठहराव की आवश्यकता है, उसी प्रकार से वचन में भी ठहराव की आवश्यकता होती है। और हमें जरूरत है जो वचन पढ़ा गया है उसके प्रति हम धन्यवाद दें। साथ ही साथ हमें सुनने की भी आदत होनी चाहिए और हमें अपने मनों को भी खुला रखने की आवश्यकता है। और जो हम लोग आप जो प्राप्त करते हैं उस पर कार्य करें। यहाँ पर हम लोग जो वचन सीख रहे हैं, अगर वो हम लोग अपनी सीख तक सीमित रखते हैं तो वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, दूसरे के लिए किसी काम का नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसके प्रति हमें काम करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर आप वचन को याद कर सके। उसकी मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि मैं वचन वर्सेस याद नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी जब मैं शनाया को पढ़ाती हूँ तो उसको रिपीट करवाते करवाते मुझे भी काफ़ी याद हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमें किसी ना किसी प्रकार से रोज दिन में अपना मॉर्निंग इवनिंग वर्शिप के टाइम अगर हम रिपीट करते हैं मेमोरी वर्स तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये एक प्रकार का अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। बहुत बड़ा अनुशासन है प्रेयर और प्रेज। यहाँ पे प्रेयर और प्रेज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ में बहुत सी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, प्रार्थनाओं से चमत्कार होते हैं, प्रार्थनाओं से जो चीज़ें नामुमकिन हैं वो चीज़ें होती हैं। तो प्रार्थना करने का भी एक तरीका है, एक अनुशासन है, उसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आजकल मॉडर्न समय में हम लोग अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और बैठते हैं और गाना गाते हैं, जो भी हम लोग के पास डिवाइसेस है सब कुछ चलता है और हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना में अनुशासन की बहुत ही आवश्यकता है। इसके लिए हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए? यहाँ पर हमें प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा ही ईश्वर को अपने जीवन में, अपनी उस सभा में जहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने ग्रुप में जहाँ है, हमें आमंत्रित करना जरूरी है। अगर आप अकेले प्रार्थना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ईश्वर से आपका संबंध अकेले जो स्थापित होता है वो और बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो फिर आप किसी दोस्त के साथ में बैठ के या परिवारजन के साथ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आपको निर्धारित करना होगा कि आपको कितना समय के लिए प्रार्थना। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं नॉन स्टॉप 4 घंटा 5 घंटा या पूरा दिन भी कई लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रार्थना आपका प्रार्थना किसी काम से है, मतलब वर्थफुल है, आपको किसी प्रकार से मदद कर सकता है? क्योंकि कई बार हम लोग अगर जब लंबा प्रार्थना करते हैं तो हम लोग भटक जाते हैं। हम लोग जो प्रार्थना कर रहा है वो तो
कर ही रहा है, लेकिन जो आसपास लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, किसी न किसी प्रकार से परेशान होते हैं। तो हमें एक निर्धारित करना है कि हमें समय से प्रार्थना करना है। कितना समय के लिए प्रार्थना करना है? आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट है अपने परिवार में, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको ग्रुप में बांट दें, ताकि प्रार्थना बहुत ज़्यादा लंबा और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ना हो। फिर आपको प्रार्थना करने के लिए चुपचाप क्वाइटली प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बच्चों के साथ में हैं, हम लोगों के साथ बहुत मुश्किल होता है। पापा काफ़ी परेशान होते हैं जब सूजी तंग करती है, जॉर्ज भी डिस्टर्ब महसूस करते हैं, तो ज़्यादातर मैं बच्चे को लेके चली जाती हूँ प्रार्थना जब हो रही होती है। तो प्रार्थना में इसलिए हमें चुपचाप रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो ईश्वर से संबंध है वो बहुत ही ज़रूरी है। और अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सूजी आ गई है। तो मैं भटक गई। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, हमें क्वाइटली प्रार्थना करने की। बहुत से लोग होते हैं जो भीड़ में भी प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। भगवान के लोगों, यहाँ आगे के पॉइंट में, भगवान से लोगों को बचाने के लिए हम लोग को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आगे जब हम देखेंगे तो हम लोगों को मौका मिलेगा कि हम देख सकें कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। और हो सके तो आप अपने शास्त्र को, अपने वचन को जोर जोर से पढ़ने की, अकेले में, सबके साथ में नहीं, अकेले में आप लगातार पढ़े, जोर से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा आप उसमें एक ऐसा नहीं कि आज किया है कल नहीं करेंगे, वैसा नहीं, आपको इसको भी एक अनुशासन में ढालने की जरूरत है। यहाँ पे प्रार्थना और वर्शिप दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, लेकिन इनके तरीकों में बहुत फर्क है। प्रार्थना आप अकेले कर सकते हैं, दो लोग के साथ मिलकर कर सकते हैं, आप ग्रुप में कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं। लेकिन जो आराधना है, जो वर्शिप है, हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलके और इस एक होली, एक पवित्र माहौल में हम लोग आराधना को करते हैं। ये एक दिल से निकलते हैं जब आराधना हमारे द्वारा किया जाता है। हम जब आराधना करते हैं, हमारे मन में ईश्वर के लिए प्रेम दिखता है, हम विनम्र होते हैं, हमारे जीवन में आत्मसमर्पण आता है, हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उनके बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उनके वचन से पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी अंग है। मैं यहाँ बहुत अच्छा लगा जब मैं शादी करके आई, सुबह और शाम, मेरे घर में भी हम लोग करते हैं फॉलो इस चीज़ को, लेकिन सुबह और शाम यहाँ पर जब वर्शिप होता है और बहुत हम लोग गाने गाते हैं और अंदर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप जानेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर का प्रेम है। मैं शुरू में बहुत इमोशनल हो जाती थी और मुझे अभी भी मुझे लगता है, लेकिन बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है जिसको कि आप आराधना के द्वारा कर सकते हैं। वर्शिप घर में होना एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया और जीवन को समृद्ध बनाने का एक अनुशासन है जिसको कि हमें पालन करना चाहिए। सर्विस, सेवा हम लोग मसीह के जीवन से हम लोग सेवा के विषय में जान सकते हैं। ईश्वर ने अपने जीवन में कभी खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम किया है। यहाँ पे मैथ्यू 20:26 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि ईश्वर हमें खुद बोला है कि तुम्हें किस प्रकार से एक सर्वेंट होके काम करना चाहिए, तुम्हें एक सेवक होके काम करना चाहिए, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सको, बड़े से बड़ा काम कर सको। इसलिए सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है एक मसीह जीवन में, एक अनुशासित जीवन में। ऐसा नहीं कि आप अपने तक ही उस सेवा को रखें। आप घर परिवार में जिस प्रकार से माँ बाप की सेवा करते हैं, या फिर आप भाई बहन की सेवा करते हैं, या अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने समाज में
ऐसे असहाय लोग हैं जिनकी सेवा करनी, जिनके लिए मसीह हमेशा आगे आए और उन्होंने अपना जीवन उनके लिए दिया और उनका उपकार किया उनके जीवन में। बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम किए लोगों के जीवन में जो असहाय थे, जिनको जरूरत थी। मसीह हमसे चाहता है कि हम उनसे प्यार करें और दूसरों से भी हम लोग प्यार करें। हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक स्टेप बाहर निकले। कई लोग होते हैं जो मुश्किल है, सेवा करना आसान बात नहीं है, लेकिन कई लोग होते हैं जो अपने ही काम से इतने थकते हैं कि वो दूसरों की सेवा करने के लिए समय नहीं होता। लेकिन यहीं पे हमें ईश्वर सिखाता है, इसको भी एक अनुशासित जीवन में हमें डालने की जरूरत है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और ईश्वर के काम के लिए, ईश्वर के लोग जो तकलीफ में हैं, जो परेशानी है, उनके लिए मदद के लिए हम लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम अपनी तो मदद करते ही हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, एक अलग सा खुशी हमें महसूस होता है और हम लोग अपने जीवन में भी तरक्की करते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम आत्मिक तौर पे बढ़ते हैं। शारीरिक तौर पे शायद आपकी कमी होगी, आर्थिक तौर पे अगर आप कमजोर होंगे तो आप में भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर आप सेवा कर सकते हैं तो आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे आप किसी को अपना समय दे सकते हैं, और चाहे आपके पास बहुत से ईश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा के बहुत से उपहार हैं आपके पास टैलेंट है आपका, जिसका इस्तेमाल करके आप सेवा कर सकते हैं और अपना इन्फ्लुएंस का भी यूज कर सकते हैं, अपना प्रभाव का भी यूज कर सकते हैं सेवा के लिए। क्योंकि जब हम अपने उपहारों का इस्तेमाल करते हैं, अपना जो इस जगत में ईश्वर की तरफ से जो हमें सब कुछ दिया गया है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जीवन के लिए बहुत समृद्ध बनाने वाली बात होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्क 12:31 में, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. यहाँ पे हमें ईश्वर बोल रहा है, खुद से हमें ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको अपने नेबर की, अपने पड़ोसी से इस प्रकार से प्रेम करना है जिस प्रकार से आप अपने आप से प्रेम करते हैं। तो जब आप अपने आप से बढ़कर अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, तब क्या होगा? आप के अंदर एक सेवा का और एक प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। इसे भी हमें अपने जीवन में एक अनुशासन की तरह लेना चाहिए। साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत बहुत ही जरूरी है मसीही आध्यात्मिक जीवन के लिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं और कई बार हम लोग अपने बिजी समय में रहते हैं, अपने गैजेट्स के साथ में रहते हैं और ईश्वर को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रैक्शन है हम लोग को। हमें काम करना है, हमें अपना परिवार देखना है, हमें और भी जो अपने पसंद की चीज़ें हैं उनको करना है। जब हम ये सब में व्यस्त होते हैं तब हम लोग कहीं ना कहीं उस साइलेंस को जो ईश्वर के साथ हमें ज़रूरी है उसको मिस करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें साइलेंस की और एकांत की बहुत आवश्यकता होती है। Solitude is not the absence of noise. It is the absence of distraction. It is the opportunity to quiet the soul and listen for God's still small whisper. हमें एकांत की आवश्यकता है और हम लोग एकांत के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो घर से कहीं बाहर निकले, छुट्टियां बिताने कहीं जाए और वो एकांत महसूस करके बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। जब आप अपने आप के साथ एकांत में खुश होते हैं तो सोचिए जब ईश्वर आपके साथ में एकांत में आपसे अपना रिश्ता रखते हैं तब हम
ईश्वर आपसे कितना खुश होंगे और आपके जीवन में कितने बड़े बड़े, आपकी आत्मा में, आपके मन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। इसलिए हमारे अनुशासित जीवन में हमें एक समय निकालना है जब हम शांति से एकांत में ईश्वर के साथ अपना समय बांट सकें। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हबाकुक पुस्तक में हम लोग को देखने मिलता है कि ईश्वर भी किस प्रकार से साइलेंस में, प्रार्थना में लगे अपने मंदिर में वो रहते हैं, किस प्रकार से। और यहाँ जीसस को भी हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल में बहुत से टाइम जीसस एकांत में जाके पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे और अपने पिता से बातचीत किया करते थे। वो अपने चेलों के साथ जा सकते थे, लेकिन वो अकेले जाते थे और घंटों अपने पिता से बात किए करते थे। और जब वो आते थे और चेले जब उनको देखते थे, उनके शरीर से, उनके चेहरे से अलग सी चमक उनको दिखाई पड़ती थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें अपने आप को भगवान की उपस्थिति में रखना चाहिए, अपनी इच्छा को उनके सामने व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारा देने हारा है, हमको देता है सब कुछ चीजें। तो हमें उनसे मांगना चाहिए, अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि ईश्वर हमें किस प्रकार से हम आपकी प्रति हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके, हमें तैयार होना चाहिए। यीशु के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, वचन को सुनना और समझना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें ईश्वर का जो वचन है उसको आनंद से लेना चाहिए और ध्यान से लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर डिटेल में देखेंगे तो अगर फोकस योर थॉट्स, हम लोग अगर डिटेलिंग करेंगे उसकी, तो हमें हमेशा सोचना है, प्रार्थना करना है, क्यों हमें ईश्वर ने बचाया, किसके लिए हम लोग बचाए गए। अगर हम ये सब चीजें सोचते हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में अगर हम सोचते हैं, तब हमें ईश्वर की तरफ से एक अलग अनुभव प्राप्त होता है। और हमारी जितनी भी दुख दर्द तकलीफें हैं जिसको कि हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उन सब से हमें छुटकारा मिलता है। हमें होली स्पिरिट को अलाउ करना है कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन में काम करे। हमें ईश्वर से मांगना है, ईश्वर पूछना है कि हम क्या करें ईश्वर कि हम आपको और ज्यादा प्रेम कर सके, हम क्या करें कि हम आप में बढ़ सके। इस प्रकार से हमें थोड़ा सा सोचना है। हमें चाहिए कि हम ईश्वर के प्रति जिस प्रकार से हम काम में अपने सोचते हैं, अपने वर्क प्लेस में सोचते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसी प्रकार से हमें लिस्ट बनाना है कि हमें ईश्वर से क्या पूछना है, क्या मांगना है और क्या हमें ईश्वर ने दिया है उसके लिए हमें थैंकफुल होना है। प्रेइंग द बाइबल, हमें प्रार्थना करना है बाइबल के लिए, वर्ड्स के लिए। क्या होता है ना, हम अपने जीवन में बहुत अच्छी बातें करते हैं, ईश्वर के वचन को दोहराते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में उसी जुबान से, उसी मन से हम लोग दूसरों की बुराई करते हैं और किसी न किसी प्रकार से हम ईश्वर को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हमें किस प्रकार से यूज करना है पावर, इस वचन का शक्ति को किस प्रकार से यूज करना है। हमें एक्चुअली बाइबल वर्सेस को याद करना है, मेडिटेट करना है, जोर से बोलना। आप कोशिश कीजिए, अगर आप याद नहीं कर पाते तो आप उसमें ध्यान लगाइए ताकि आप सीख सकें। आप जैसे साम्स 1 चैप्टर 1 वर्स 2 में देख सकते हैं, ब्लेसेड इज द मैन हु डज नॉट वॉक द काउंसिल ऑफ द विकेड और stand in the way of sinner or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. तो इसी प्रकार से हमें अपने वचन में ईश्वर के वचन के साथ हमें चलना है।
हमें ज़रूरत है कि हम महसूस करें ईश्वर हमारे साथ है, उनकी लाइट को महसूस करें, उनके वचन को, उनके लॉ को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंसिडेंट के अनुसार आप टेक्स्ट रेफरेंस लीजिए, रीड कीजिए, अलग अलग, जैसे अपने वर्क प्लेस में आप जाते हैं, एक एवरेज आदमी रोज 7,500 कदम चलता है। अब ये जो कदम चलता है तो वो कहाँ कहाँ जाता है, उस जगह में उसे जाकर अपने ईश्वर के वचन के अनुभव को बांटना, उनसे प्रार्थना करना, उनके बारे में जानकारी लेना, वो सब हम चीज़ें कर सकते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम लोग बाइबल की प्रार्थना करते हैं, बाइबल को जानते हैं। अगर हम टॉपिक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नीचे दिया हुआ है, प्रेयर्स ऑफ रेवलेशन, रेवलेशन 4:8-11 पढ़ सकते हैं, फिर रेवलेशन 5:8-14, क्राइस्ट सफरिंग के बारे में आइज़ाया 53 और साम्स 22 और फिलिपिन्स 2 में लिखा है। साम्स और अच्छा पढ़ने के लिए आप मन के लिए बहुत अच्छा है, साम्स 103 एंड 91:51। बहुत जगह में हम लोग एक चीज़ लैक करते हैं जो कि सिंप्लिसिटी है। हम लोग ने अपना जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि हम लोग सिंप्लिसिटी को भूल गए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हम लोग इकट्ठा करते हैं चीज़ें। मैथ्यू 6:19-20 में कहा गया है कि तुम अपने लिए मत जमा करो, इस धरती पर, इस अर्थ पर तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने लिए ट्रेजर इकट्ठा करने की, जब स्वर्गीय राज में तुम्हारे लिए ट्रेजर इकट्ठा है, खजाना है, स्वर्गीय राज का खजाना तुम्हारे पास। तो ईश्वर से हमें ये भी प्रार्थना करना है कि हमें अपने जीवन में हम सिंप्लिसिटी से, सादगी से जी सके और हम तैयार हो सके, हम सेक्रीफाइस करना सीख सके, हम चीज़ों को समझ सके कि किस प्रकार से चीज़ें हम लोग वेस्ट करते हैं, जिनको बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा मुझे अक्सर कहा करते हैं कि बबली तुम बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती है, तुम मत वेस्ट करो, तुम ये सब चीज़ें फेंकाती है। मैं सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत में काम आएगा, इसलिए मैं खरीदती हूँ, लेकिन ये मेरी बुरी आदत है, ये मेरी बुरी आदत है जिसे मुझे ठीक करने की आवश्यकता है। और जो हमारे बड़े हैं वो लोग अपने जीवन में बहुत कम से काम चलाना सीखे हैं और वो जानते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें वेस्ट होती है और किस प्रकार से चीज़ों की कोई कीमत नहीं है जिनका इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता है। तो हमें यहाँ अपने जीवन में सबसे बड़ा अनुशासन ये लाना है कि हमें अपने जीवन को, जो इच्छाएं हैं हमारी, उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करना है। हमें कोशिश करना है कि हम जो अपनी इच्छाएं हैं उनको कम करें और ईश्वर के कामों के लिए हमारी इच्छाएं बड़ी रखें। सीक्रेसी, गोपनीयता, मेरा टॉपिक शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ख़त्म करूँ कम से कम करके। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सब लोग ये सब बातें जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं ये सब बातें, लेकिन हम लोग जब अपने कामों में व्यस्त होते हैं हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, जो कि मैं अपने जीवन में भी देखती हूँ। तो हमें सीक्रेसी हम किस प्रकार से हमें रखना चाहिए, हमें किस प्रकार से सीक्रेसी का उपयोग करना चाहिए। क्या है सीक्रेसी? कई बार क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें लोग पहचाने, हमें एक्सेप्टेंस मिले। मैं भी अपने जीवन में कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँ तो मुझे मेरे बारे में बोला जाए या किसी के बारे में बोला जाए, सब कोई चाहता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जब इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं, अपने पहचान बनाने के पीछे भागते हैं, अपने आप को लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, तब क्या होता है, हम बहुत ईश्वर में पीछे हो जाते हैं, हम ईश्वर की सेवा में पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें
जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी कुछ हमारे द्वारा किया जाता है, सर्विस की जाती है, उसे ज़रूरी है कि हम लोग गोपनीयता में रखें, उसको सीक्रेसी उसकी बनाए रखें, क्योंकि हम कितना भी काम कर ले, ईश्वर की नज़र में वो कुछ नहीं, जो ईश्वर के द्वारा काम किया गया है, किस प्रकार से काम करते हैं और हम उसका प्रचार किस प्रकार से करते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इस गोपनीयता को बनाए रखें और ईश्वर के साथ में बने रहें। इन्फ्लुएंस, प्रभाव। जब हम अपने जीवन में सिंप्लिसिटी लाते हैं, हम जीवन में अपना बदलाव लाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमसे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। हमारे जीवन को देख के बहुत से लोग जान पाते हैं कि ये तो अलग व्यक्ति है, इसका उठना बैठना, इसका बात करना, इसका चलना फिरना सब हम लोगों से अलग कैसे है। ये होता है प्रभाव। जब हम अपने जीवन से किसी अलग प्रकार का बर्ताव या किसी अलग प्रकार का एक्शन दिखाते हैं हम लोग, तब हम लोग किसी ना किसी को प्रभावित करते हैं। तो हमें प्रभावित करना है ईश्वर में, मसीह में लोगों को, और प्रभावित करने के लिए हमें उनके साथ में निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। हमें प्रभावित करना है जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें चूज करना है, सबसे पहले अपना पर्सनल प्रेयर करना है, उसके बाद अपने परिवार के लिए प्रेयर करना है, फिर जो हमारे लीडर्स है, जो हमारे ऑफिस में दिखते हैं, बॉस है, हमारे काम संभालते हैं, उन सब लोगों को नहीं छोड़ना कि वो तो हमें देखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है, वो नहीं। हमें प्रार्थना करना है उनके लिए। हमारी जो अथॉरिटी है हम लोग की, हम लोग का जो मिनिस्टर लोग हो, हम लोगों के लिए काम करते हैं, सरकारी व्यक्ति लोग हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए हमें प्रार्थना करनी है। जगहों के लिए प्रार्थना करें जिन जिन जगह में ईश्वर का काम होना है। सबसे ज्यादा जरूरी है यही, जो इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में दिखता है लोगों को, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चलने फिरने के द्वारा, हमारे बात करने के द्वारा, उसे हम एक अनुशासन कह ही सकते हैं। अभी हम लोग बहुत अच्छा लॉकडाउन हुआ है और हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए। लॉकडाउन हुआ है लेकिन हम एक दूसरे के पास में नहीं है। हम पहले जिस प्रकार से लोगों से मिलते थे हम नहीं मिल पाते, लेकिन हम लोग अभी इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग फेलोशिप में बढ़ गए, हम लोग संगति में बढ़ गए। हमारे पास बहुत से माध्यम हैं, ये विज्ञान है, जो भी कुछ है, लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है। इसकी संगति से हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे। इतने सालों से हम लोग फैमिली मेंबर, हम लोग कभी छुट्टी में ही मिल पाते थे, लेकिन जब हम संगति में आए हैं, इस प्रकार की संगति में हम एक दूसरे से वचन बांटते हैं, बातचीत करते हैं, तब हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है और ईश्वर के और नजदीक में आते हैं जब हम एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ईश्वर भी संगति में काम किया। पिता और सन और होली स्पिरिट संगति, एक दूसरे के साथ में छोटा छोटा ग्रुप में ईश्वर प्रार्थना करने के लिए बोला है, वो मदद करने के लिए बोला है, ग्रुप बना के बोला है। हम लोग अभी सैबथ स्कूल में यही सब अध्ययन कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे से संगति करते हुए ईश्वर में आगे बढ़ना है और एक दूसरे को बेटर इंसान बनने में मदद करना है। संगति के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, एक दूसरे का मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम लोग प्रतिज्ञान को बढ़ा सकते हैं, दूसरों का सुनने और समझने को हम लोग स्वीकार करने लगते हैं। क्या होता है, कई बार हम लोग जब एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो हम लोगों के विचार भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को सुनने और समझने लगते हैं तो हम लोग एक दूसरे की बातों को स्वीकार करने लगते हैं और उससे क्या होती है, एक दूसरे की मदद होती है और ये सब चीज हमें ग्रेटिट्यूड से भर देता है, कृतज्ञ हो जाते हैं हम लोग और ईश्वरीय प्रेम को हम लोग संगति के द्वारा बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लास्ट मेरा स्लाइड है, ये है उपवास। मैंने सारे पॉइंट शायद नहीं कवर किए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि किस प्रकार से मैं डिसिप्लिन्स को, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को समझा सकूं। बहुत ही कठिन
चीज है उपवास। क्योंकि कई बार तो हम लोग शारीरिक उपवास कर लेते हैं, शारीरिक तौर पे हम लोग उपवास कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों को उपवास किस प्रकार से करना है? हमें शारीरिक मानसिक सब तरह से उपवास करना है, अपने आप को चीज़ों से दूर रखना है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग उपवास करने की आवश्यकता है हमें। हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग सब चीज़ों जैसे किसी को आदत होती है बहुत अच्छा खाने की, बहुत खाने की, किसी को बहुत अच्छा पहनने की आदत होती है, किसी को घूमने की आदत होती है, किसी को टीवी देखने की आदत होती है, या किसी को और किसी अन्य प्रकार के शौक होते हैं। जब हम इन चीज़ों से अपने आप को दूर करते हैं तो हम लोगों से एक एनर्जी उत्पन्न होता है जो कि हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। तो हमें सेल्फ डिनायल बनना जरूरी है। हमें अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने मन का जो चीजें हैं, अगर उसको करके हम लोग सोचते हैं कि हम ईश्वर के करीब आ जाएंगे, तो वो नहीं है। हमें उपवास करने की आवश्यकता है। हमें जरूरत है कि हम ईश्वर के नजदीक आए, उपवास में नजदीक आए। हम लोग प्रार्थना करते हैं जब भी किसी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, या अपने माता पिता के लिए जब वो तकलीफ में होते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। क्यों? क्योंकि जब उपवास में रहते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। किसी भी प्रकार से हमारे मन में कोई बुरी चीजें नहीं होती, और हम पूरी तरह से मन से उपवास करते हैं ईश्वर में। ईश्वर भी अपने जीवन में जीसस भी ल्यूक चैप्टर 4:1-37 में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से 40 दिन उन्होंने उपवास किया और उनकी परीक्षा की गई, उन्हें परखा गया, और उस परखने में वो उपवास करने के चलते और ईश्वर से अपनी प्रार्थना के चलते वो उस परीक्षा में सफल हुए। वो एक मानव जीवन में आए थे, उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन उन्होंने उपवास करके अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया और उसके लिए वो तैयार हुए। हमें भी इसी प्रकार से, अगर आप बहुत उपवास नहीं कर सकते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप किन चीज़ों से आपको जब ज़रूरी लगता है कि आपको उन चीज़ों से उपवास करने की आवश्यकता है तो आप उपवास करें। हमें भूख और शौक के पीछे नहीं भागना है, हमें बहुत सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये हमें चीज़ें ईश्वर से दूर ले जाती है और शैतान के करीब ले जाती है। यही एक स्थिति है उपवास की, जब हम ईश्वर के नज़दीकी में आ सकते हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना पेशेंटली मेरा पूरा बात सुना। मैं किस प्रकार से आपके मन को छू पाई मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने कोशिश की, और मैं बहुत घबरा रही थी। मैं बहुत बार मेरे आज काफ़ी बच्चे लोग हैं हम लोग सामने, वो लोग मुझे देखे हैं और वो लोग जानते हैं कि मैं हमेशा घबराती हूँ स्टेज में जाने से या वचन को बांटने से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के वचन को नहीं जानती और मैं पीछे हटती हूँ। लेकिन जब मैं ईश्वर के वचन को बताती हूँ तो मैं आपको बोल नहीं सकती कि मैं किस प्रकार से उनसे जुड़ाव महसूस करती हूँ, और मैं बहुत ही शांति महसूस करती हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं भी अपने जीवन में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना और उपयोग करना, इस्तेमाल नहीं उपयोग करना। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ अगर आप में से कोई भी किसी प्रकार से स्पिरिचुअली डिसिप्लिन होना चाहता है तो यही मौका है। हम लोग अंत समय में हैं और हमें अंत समय के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं मिसेस मेघा हेम्ब्रॉम बबली को। उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से हमें ईश्वर का वचन बताया, और जो टॉपिक जो है, आई डोंट थिंक सो आई हैव हर्ड इट बीइंग presented or shared in so much enthusiasm and with so much depth and with so much understanding. I think we were really blessed. That topic of discipline was very, very important, and it's the first time I think I would have heard a message in discipline in this manner. हम बहुत खुश हुए कि हमारे बीच में ये जो मैसेज जो हमें सुनने मिला अनुशासन के ऊपर, और अनुशासन जो हम प्रेयर लाइफ में हम कर सकते हैं, उसके लिए हम बबली को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
उसने बहुत अच्छे तरीके से उसने दिल खोल के उसका जो इंथुजियाज्म था, जिस तरह से वो ये वचन पेश कर रही थी, मैं सोचती हूँ कि द होली स्पिरिट वाज लीडिंग यू टू शेयर दिस इम्पोर्टेंट मैसेज, क्योंकि ये आज का दिन में हमें कितना जरूरी है एक अनुशासित जिंदगी जीने के लिए. So thank you, Bubbly, for reminding us, for letting us know the role of discipline in our prayer, in our spiritual life. So God richly bless you in your ministry. आपने बहुत अच्छा से ईश्वर का संदेश हम तक पहुंचाया. ईश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे कि जिस तरह से आप लोगों की जिंदगी को छू रहे हैं. बच्चे वहां आते हैं पढ़ने, जिनके साथ भी आप संपर्क में आते हैं, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे कि you will continue to touch their lives, and you have been expressing yourself in such a nice manner, and we want to have you back again. So धन्यवाद देते हैं. और I think इस समय शनाया का एक स्पेशल सॉन्ग है, तो हम we call शनाया to bless our heart with the song. Happy Sabbath, everybody. Say happy Sabbath. Happy Sabbath, everybody. Say louder. Happy Sabbath. We are going to sing a song, and this song, everybody knows this song, The Old Rugged Cross. You can hum along as we sing the song. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love That old cross where the dearest and dance for a world of lost sinner was led. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I'll lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, had wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I'll lay down. I will cling to the old it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory
Amen. Praise the Lord. Thank you, Shania. Thank you, George, for that wonderful message and song. And what a wonderful ministry. Didn't you enjoy it, folks? A wonderful family ministry. क्या ही सुंदर ministry है कि जब परिवार के सारे सदस्य इस ministry में भाग लिए. So we thank the Lord and we ask God's wonderful blessings to be upon each and every one of you. इस समय हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बीच में भाई मिस्टर विक्टर लकड़ा हैं जो हमारे लिए इस समय क्लोजिंग प्रेयर करेंगे. तो हमारे ये सभा को, सुंदर सभा को अंत करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर विक्टर लकड़ा से कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें. हम प्रार्थना करें. स्मरणीय बाप, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और इस मौके के लिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं आज की सावत की शुरुआत में जब हम सब एकत्रित होकर के विभिन्न जगह से हम आपकी नाम के धन्यवाद कर सकते हैं. और इस समय धन्यवाद देते हैं कि जब हम वचनों सीखता कि किस तरह से हम अपने आत्मिक जीवन का अनुशासन हम करें, और हम इसी तरह से पिता हम अपने आप को आपके हाथ में निछावर करते हुए, समर्पित करते हुए हम इस मसीही जीवन हम जी सके, जिससे पिता हमें बल, शक्ति, सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान हम प्राप्त करते हुए पिता हम आपके शरण में होते हुए पिता हम अपना जीवन हम व्यतीत करने बन सके. इस तरह से तो हम में से प्रत्येक को तो आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं. जितने आज इस जूम के द्वारा से, ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न जगह में पिता आपके नाम की स्तुति, महिमा और आपकी संगति ले सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. पिता हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकता है, बहुत सारे जरूरतमंद है, तू जानता है पिता. इस समय हम प्रार्थना करना चाहते पिता, इस महामारी जो हमारे इस पूरे दुनिया में फैली हुई पिता, इस महामारी से आपने सुरक्षित रखा है. अब प्रार्थना करते हैं जो लोग इस महामारी के में पीड़ित है, उनके चक्रव्यूह में है पिता, उन सबों के साथ हो, उन्हें तो सुरक्षित प्रदान कर. इसी तरह से प्रार्थना करना चाहते हैं जो बीमार में है, तकलीफ में है, उनकी विशेष सुधि ले. प्रार्थना रखना चाहते हैं और बड़ा के लिए, मिस्टर हसदा के लिए, जिसमें पिता वे चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते पिता, और लेकिन तू जानता है पिता, उसके अनुसार से तू उनकी सुधि ले और उन्हें तो सुरक्षित रख और उन्हें स्वस्थ जीवन दे. प्रार्थना करते हैं मिस्टर हेमरोम के लिए जो पिता इस समय वे भी अपने तकलीफों से जूझ रहे पिता. तो महान है पिता, तो हम सबका ईश्वर है, तो हम सबको बनाने वाला ईश्वर है. उनके हर एक तकलीफ को तो जानता है, उसके अनुसार से तो उनकी सुधि ले और उन्हें तो स्वस्थ कर ताकि स्वस्थ होते पिता आपको धन्यवाद देने से. इसी तरह उसके परिवार में जितने सबों के साथ धन्यवाद देते हैं सुंदर मिनिस्ट्री के लिए, जबकि पिता आपने उस परिवार को आशीषित किया है. इसी तरह से आशीषित कर ताकि पिता वे आपके डर भय में रहते पिता आपकी सेवा टहल कर सके. इसी तरह से धन्यवाद देते फिर से इस मौका के लिए कि आपने हम सबको इस परिवार संगति लेने के लिए आपने मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद. इसी तरह से इस रात्रि के समय हम सबको सुरक्षित रख और कल फिर से नए दिन, साबत दिन देखने को मौका दे ताकि हम साबत दिन देख सके और आपकी उपासना आराधना कर सके. पिता हम सब पापी है, हमारे पापों को क्षमा. ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनो. आमीन.